होगी। Simplicity, both in thought and action. Buddhism teaches respect, respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. Therefore, the teachings of Buddhism are the means to a sustainable planet. Friends, in his very first sermon in Sarnath and his teachings after that, Lord Buddha spoke on two things: hope and purpose. He saw a strong link between them. From hope comes a spirit of purpose. For Lord Buddha, it was the removal of human suffering. We have to rise to the occasion and do whatever we can to increase hope among people. Friends, I'm very hopeful about the 21st century. This hope comes from my young friends, our youth. If you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering, it is our startup sector led by our youth. Bright young minds are finding solutions to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. They will motivate and show the way ahead. At times, they will even calm you down or cheer you up. In fact, Lord Buddha's teaching of Appa Deepo Bhavaha, Appa Deepo Bhavaha, be your own guiding light, is a wonderful management lesson. Friends, today the world fights extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present, and they will remain relevant in the future. Friends, it is the need of the hour to connect more and more people with Buddhist heritage sites. We in India have many such sites. You know how people also know my parliamentary constituency of Varanasi. At the home to Sarnath, we want to focus on connectivity to Buddhist sites. A few days back, the Indian cabinet announced that Kushinagar airport will be an international one. This will bring so many people, pilgrims and tourists. It would also generate economic opportunities for many. India awaits you. Friends, once again, my greetings to you all. May the thoughts of Lord Buddha further brightness, togetherness and brotherhood. May his blessings
inspire us to do good. Thank you very much. प्रधानमंत्री धर्मचक्र दिवस पर संबोधित कर रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बोली और बुद्ध को याद किया। बुद्ध ने जीने का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये जो रास्ता दिखाया है, ये आपको शांति की तरफ ले जाएगा। आज गुरुओं को याद करने का दिन है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, जिसे हम सबको समझना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। 21वीं सदी को लेकर मैं आशावादी हूं और आशावादी होने से ही आगे जो राह है वो आसान हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है, यानी इस युग में भी अगर भगवान बुद्ध को समझते हुए, उनके जो वचन है उसका पालन करते हुए इंसान आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर शांति और तरक्की उसे जरूर मिलेगी। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। पीएम ने भगवान बुद्ध को यहाँ पर नमन किया है और ये महत्वपूर्ण बातें लिखी। आज के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि अगर आज के संदर्भ में देखें तो भी बुद्ध ने जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको इसे मानना चाहिए। दरअसल आज 4 जुलाई का दिन जब धर्म चक्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और इस दिन बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था और उसी की स्मृति में ये आयोजन हुआ है। यूपी के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के डियर पार्क में इसे मनाया जाता है। पूरी दुनिया के बौद्ध इसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाते हैं और आज प्रधानमंत्री इसी मौके पर जब सामने आए, उन्होंने संबोधन के तहत ये महत्वपूर्ण बातें कही और देश से एक तरीके से ये अपील भी की कि बुद्ध के दिए जो संदेश हैं उसका पालन करना बहुत दिशा में आपके लिए अच्छा हो सकता है। आज अपने गुरुओं को याद करने का दिन है, इसलिए जो भी आपके गुरु हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, सही वक्त पर दिखाता है और उसी मार्ग पर चलकर इंसान तरक्की करता है। चीन से तनाव के बीच कल पीएम मोदी ने लद्दाख में एलएसी के पास नीमू फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। वहां पीएम मोदी ने सिंधु दर्शन पूजा की। पीएम मोदी ने नदी में नारियल चढ़ाया और इसके बाद फूलों से सिंधु दर्शन पूजा की। यही नहीं, पीएम मोदी ने वहां गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में जवान जो घायल हुए थे उनसे भी मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। तो कल पीएम मोदी ने सिंधु दर्शन पूजा की। कल लद्दाख गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने ये पूजा की, उसके साथ ही साथ गलवान घाटी में जो घायल हुए थे जवान उनसे मिलने भी पहुंचे, उनका हौसला भी बढ़ाया और ये कहा कि आज अगर देश जो है सुरक्षित है तो इन वीरों के द्वारा ही है और ऐसे में हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उधर राहुल गांधी ने लद्दाख के रहने वाले लोगों की चेतावनी का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार से चीन को गंभीरता से लेने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख के देशभक्त लोग चीन की घुसपैठ के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। उनकी चेतावनी को अनसुना करने से भारत को नुकसान होगा। भारत के लिए उनकी बातों को सुनिए। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी के लद्दाख दौरे को जवानों का हौसला बढ़ाने वाला और इस पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को निशाने पर लिया। पूरा देश एक तरफ एक स्वर में बात कर रहा है और ये जो लफाजी के लालीपाप लिए घूमने वाले लोग हैं वो एक तरफ बात कर रहे हैं। ऐसे समय में, जिस समय की आज देश गर्वान्वित है हमारे सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर, आज देश गर्वान्वित अपने को महसूस कर रहा है अपने एक ऐसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के मजबूती के साथ किए गए फैसलों को लेकर। ऐसे उसमें ये ऐसे लोग जो है वो शर्मिंदगी भरी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जैसे लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक वायरल वीडियो के साथ